运动的玩意儿，我有个东
Bunga lagi kuat hotel lagi hotel yang makan naik nasi ada yang boleh beri anu pun nak ada benda apa yang orang hari bergerak boleh nak ada benda apa yang mesti orang ini kalau buka aku buka kalau masih jadi ada boleh masih asyik mana itu ni bunga lagi di Malaysia bagi tiga orang semua membawa nuai sekarang orang-orang bayar sedang nuai sekarang apa yang bawa di bawah ni ada apa yang orang di sini ada asyik membawa yang asyik mereka bagi sesuatu lagi apa ini kalau saya orang seperti asyik apa masih pilih guna apa masih sendiri guna asal orang yang berada ada di Sesuatu yang seperti kerja mereka atau orang masih main apa pun yang ada apa orang ada banyak nasi kusu apa kemudian lagi ada apa belum sini dulu na apa kerja wajib kami itu sudah banyak apa yang dilakukan apa belum sini ada apa yang biasa su kawan siapa lagi maka tahu dia seperti apa lagi ada di sana itu seperti jadi aku itu sangat sih orang lain hari yang banyak campur dan jangan mahu buat apa kita pilih nasi.
organizations existing Jerusalem ay magiging mga sibukay tawag bigay niya rin po ng taman ay at ako ito sa mga kapag-aaral ng simulawa ng Chile. Ito
Luna, tapi mereka tanya begini, leking pun leking Luna, Hindu dan Tani, apa tadi begini kali, Hindu lang bahasa sana sini kali. Aku ini sana itu mangga dan kamera dan pusat orang, pusat lagi ada apa juga, dari aku ini sana bahasa dunia kali, gambar terjadi hujan Luna. Abai mang cingla lagi jadi berita apa abai ini orang benda sana itu suami jadi sana itu sila sana juga jauh berbeda masih di bawah ini orang berbeda aku bawa ini sih
Ako'y bunga na siya ay magkakaroon ng akin. Ako yan, bunga semula bagoy na di magkakari. Kaya bunga na namin pinigil ba yang jadi sesuatu na ako pahali. At bunga yan, tapna. So, masalita ko yung video ko, ito yan ito yan. Iyon ito madula. Ako'y mani madula ito yung may pato pa. Berkat kemuliaan kita bersama Ibu Tuhan, kita ini belum dapat apa yang sebenarnya ini manusia yang penting.
साधारण CPS ayo mahal karena dia kagani aduh so dari prasna karena dan macam wajib mahal apa Jadi, anu berkata apa yang ko sebab sebenarnya kesenian bodoh legasna, memang banyak hal berpasang lorana ini yang terjadi.
Lalu sebagian manusia lalu dari wakil komunikasi antara sahabat tak terulang. Bayangkan nanti hari kedua, ayo kita kembali juga kita lagi juga. Kamu jangan lagi juga ini hari ini, hari itu juga. Tapi berpada Uli dengan masa uang Abu Al-Ayo Hai Sanawat Isna Berfungsi Berfungsi ini media dia.
mari lotre jadi ada kerja ahum juga itu yang beri nanti gimana kau sana ini na abia kasih kita luar amadi ke esensi Thai place Thai variation Thai amadi kasih luar Yang kita bawa sudah begitu sangat berbicara Ramlah Muslim itu ada di mana Jadi saya juga mengenal ada di mana di beberapa musim yang ada di sini, ini sama dengan ini juga di sini. Jadi ini sama dengan ini yang juga di sini terkait. Halo, presently, saya masih hidup di Tokyo.
Devotion personal harmony, Murali, Adova Krishna, Bhakti Bhavanani, Devotion personal. Secretary, Executive Committee, members, Secretary Summary as previously is most concerned with operations physical safety is leading to the group to the local counter city Malaysia the Tokyo
Masih mengenal sana masih ada untuk sebagai cara perusahaan pemerintahan dan sehingga menjadi agar mengasih berbagai juga masih dibuka ekonomi yang baik kedua, baik terus pimpinan di sini sama dunia. Negara kerana lepas kami habis lagi dunia negara ayat pasca President Johnson Rawan Singh habis lagi dunia. Negara sebab sendiri nanti berusaha bersama di mana mesti mati ini. Betul, Jakarta masih berada sana di Jakarta se Pakistan berpanada and sana posisi Kanko Jurnal and Sonordi Singh of Mayapur.
ट्रंप को एक करारा ह्यूमिलिएशन सर्व किया है। या दोस्तों, एप्पल ने साफ साफ कह दिया है भारत की जो कहानी है उससे वो जुड़े रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यहां इन्वेस्टमेंट मत करो, तो इन्होंने डबल डाउन कर दिया है। पिछले 5 दिनों में $1.5 बिलियन का निवेश एप्पल की ही अगर आप देखें तो वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने भारत में किया है। यानी कि उनको बड़ा क्लियर पिक्चर है। डोनाल्ड ट्रंप को जो कहना है कहें, फोन तो आईफोन तो भारत में ही बनेगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा यूएस भी मूक दर्शक बना नहीं बैठा है, वो भारत के साथ अपने अलग डर्टी गेम्स खेल रहा है। यहां पे दोस्तों उन्होंने हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जैसे कि मैंगो उसको पनिश किया है। जिस प्रकार से ये पनिशमेंट किया गया है, जिसमें यूएस ऑफिशियल की गलती के वजह से हमारे मैंगो एक्सपोर्टर्स को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो अमेरिका जानबूझ के भारत को परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, और भी कुछ तरीके हैं जिससे वो परेशान कर रहा है। क्या हो रहा है आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जरा ये देखते हैं। देखिए, आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मई को कहा था कि देखिए, टिम कुक को कहा था कि मुझे प्रॉब्लम है आपके साथ क्योंकि आप तो भारत में निवेश करते हैं। और आपको मालूम ही है एप्पल किस प्रकार से भारत को एक प्राइमरी प्रोडक्शन फैसिलिटी बना के रखा है। ऑलरेडी दुनिया के 20% आईफोन भारत में बनते हैं। टारगेट है इस साल के अंत तक ये 25% हो जाना चाहिए। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो चाइना पे निर्भरता है वो एप्पल की खत्म हो जाए आने वाले कुछ सालों में, यही उनका प्लान है। और इसको भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इंडिया अपना ध्यान खुद रख सकता है, वहां तुम निवेश मत करो। उसके बाद दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप पैरेलली क्या करने लगे, यूएस और चाइना में कुछ डील की बातें होने लगी और उससे सवाल पूछा गया भारत के फैक्ट्री एम्बिशंस का क्या होगा अगर उनके बीच में ट्रेड डील हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों एक कहानी वहां से स्पिन करने की प्रयास की गई। लेकिन यहां पे आपके समक्ष आप देख रहे हैं
एप्पल की जो इंडिया स्ट्रेटेजी है वो और मोमेंटम गेन कर रही है। फॉक्सकॉन ने 1.5 बिलियन का निवेश किया है तमिलनाडु के प्लांट में, और इसके साथ जो आईफोन प्रोडक्शन भारत में होना है वो और अधिक होगा और ये यूएस भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो एक तरफ तो एप्पल की बात हो रही है, दूसरी तरफ दोस्तों मैंगो कैसे पीछे रह सकता है। जरा देखिए मैंगो के साथ क्या हुआ है। हमने मैंगो एक्सपोर्ट किया यूएस को, यूएस सबसे बड़ा मार्केट है हमारे मैंगोज का। मैंगो हमने भेजा, सारे कानून सारे नियम सबका पालन किया। अमेरिका जो पेपर वर्क कहता है वो पेपर वर्क भी करके दिया। क्या जब मैंगो पहुंचा तो क्वालिटी A1, क्या उसमें कोई पेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी हमारे मैंगो को उन्होंने रिजेक्ट किया है। दोस्तों आप अगर देखें तो इससे लाखों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, हमें करीबन $500 मिलियन या फिर 5 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो वीजा बैन अलर्ट भी इशू किए हैं, जिसमें वो इंडिया को कहीं ना कहीं आप देखें तो सिंगल आउट कर रहे हैं। ना श्रीलंका, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, ना बांग्लादेश, ना वियतनाम, ना कोई और देश भारत की तरफ उंगली उठाते हुए कुछ एक्शन ले रहे हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि देखिए यहां धुआं तो हमें दिख रहा है, कहीं आग तो जरूर लगी है। क्या हुआ है आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दे। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एप्पल सीईओ टिम कुक को कहा था, आपको याद होगा दोहा में कहा था, हमने कवर भी किया था, आदित्य सर ने कवर किया था, इसमें इन्होंने कहा था कि देखिए आपका इंडिया में प्रेजेंस बढ़ रहा है, मैं इससे खुश नहीं हूं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आप इंडिया में बिल्ड करते हैं, वो अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं, ये इनके शब्द थे। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एप्पल डरेगा ट्रंप के इस बात से, इस सेंटेंस से, लेकिन दोस्तों ऐसा लग रहा है ट्रंप को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। दुनिया के लीडर्स छोड़िए, अब तो कंपनी के सीईओज भी सीरियसली नहीं ले रहे। एप्पल ने इंडिया में निवेश करना शुरू किया और चाइना को डायल डाउन करना शुरू कर दिया पिछले 5 दिनों में, यानी कि ये 15 तारीख का एपिसोड है जो आपको बता रहे हैं, और उस बीच से अब तक ऑलरेडी 1.5 बिलियन का निवेश फॉक्सकॉन ने भारत में किया है। एप्पल का दोस्तों टॉप सप्लायर है फॉक्सकॉन, इसी के प्लांट्स होते हैं जो असेंबली प्लांट्स लगते हैं। उसने 1.5 बिलियन इंडिया में निवेश किया है और ये तमिलनाडु में हो रहा है, जहां पे अगर आप देखें तो बिग चंक ऑफ ग्लोबल आईफोन का आउटपुट यहीं से आएगा और यही फोन यूएस भी जाएगा। इस निवेश के अगर आप डिटेल्स देखें ना तो बड़ा क्लियर है। एप्पल वेंडर फॉक्सकॉन ने 12,800 करोड़ रुपए भारत में डाले हैं पिछले 5 दिनों में, कंपनी ने अपने रेगुलेटरी नोट में यह क्लियर किया है। फॉक्सकॉन ने दोस्तों तमिलनाडु के यूनिट यूजान टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया है अपने सिंगापुर बेस्ड आर्म से। यूजान टेक्नोलॉजी कौन है दोस्तों? ये अगर आप देखें तो तमिलनाडु प्लांट जो फॉक्सकॉन यूनिट का है वो ये यूजान टेक्नोलॉजी के नाम से है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तो बनाता ही है, साथ साथ आईफोन को भी असेंबल करता है। दोस्तों इसके साथ एक चीज क्लियर है, इंडिया केवल और केवल एप्पल के लिए कोई मार्केट नहीं है, ये एक फैक्ट्री भी है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रिटिसिज्म था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एप्पल में भी। अब दोस्तों आपको जानना होगा, देखिए एक बात क्लियर है, यहां बिजनेस हो रहा है, बिजनेस में ना ये इमोशंस काम नहीं आते, सब कुछ नफा नुकसान के लेंस से देखा जाता है। एप्पल भारत में है क्योंकि दोस्तों उसको भारत की आवश्यकता है, जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज्यादा उनको भी हमारी आवश्यकता है। एक बात आपको जाननी होगी, ना वो हम पे मेहरबानी कर रहे हैं ना हम उन पे मेहरबानी कर रहे हैं, ये प्रॉपर गिव एंड टेक हो रहा है। अगर आप देखें तो GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है, इसके फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव जी, ये फॉर्मर इंडियन ट्रेड सर्विसेज के अफसर रह चुके हैं और अब अपनी एक थिंक टैंक चलाते हैं जो कि ट्रेड रिलेटेड चीजों को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचती है बात, और गवर्नमेंट को भी एडवाइस देते हैं। तो इन्होंने कहा देखिए एप्पल सीईओ टिम कुक ने जब चूज किया कि वो भारत को रिलोकेट करेंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को, कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये अगर फोर्स किया जाए उनको इसके बाद कि आप भारत छोड़िए यूएस चले जाइए असेंबल करने, तो ये एप्पल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं जरा जानिए। देखिए दोस्तों अगर आप देखें तो हमारे लिए क्या नुकसान है, हमारे लिए नुकसान है कि हमारे पास जो आईफोन असेंबली में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है वो नहीं होगा, बहुत काफी मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लो इनकम एम्प्लॉयमेंट होता है, ये हमारे यहां एक डायरेक्ट लॉस होगा जो हम बियर करेंगे। लेकिन एप्पल के लिए जरा सोचिए कितना नुकसान है। अगर आप देखिए तो ऑन एन एवरेज एक आईफोन जब हमारे यहां बनता है तो असेंबली में इन टोटल वो फोन भले $1,000 का होता है, लेकिन भारत में वो केवल $30 के रूप में भारत में आप अगर देखें तो इंडिया के यूनिट्स तक पहुंच पाता है। बाकी तो क्या इंपोर्टेड कंपोनेंट्स हैं, हमारे यहां तो असेंबली हो रही है। तो दोस्तों वो जो $30 भी जो भारत आ रहा है ना, जो कहीं ना कहीं आप देखें तो देश अर्न करता है, उसमें भी सब्सटैंशियल शेयर हम जो भी मैन्युफैक्चरर है यानी कि एप्पल सिंप्लिसिटी के लिए बोलते हैं उनको हम लौटा देते हैं। क्यों लौटाते हैं?
क्योंकि हम PLI स्कीम रन कर रहे हैं जो कि उनको इंसेंटिवाइज कर रहा है कि आप भारत में फैक्ट्री लगाएं। तो कहीं ना कहीं आप भारत में जो प्लांट लगाए हैं उसके जो पैसे जो आप बना रहे हैं वो भी आपको भारत सरकार सब्सिडाइज कर रही है। इस तरीके से आप भारत में जब आईफोन बनाते हैं तो बहुत सस्ते में बना रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके इंटरेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए एप्पल के ही ये सारे जो टेक जायंट्स हैं, सैमसंग भी, इनके इंटरेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स पे कम कर दिया है ताकि आप इसको भी इंपोर्ट करा सके कंपोनेंट और सीधा यहां असेंबली करें। टेक्निकली हमें चाहिए था कि वो कंपोनेंट्स पे हम इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाते और इन कंपनीज को बोलते कि ये भी यहीं पे बनाओ और यहीं पर असेंबली करो, लेकिन तुम्हारे प्रेशर में हमने ये भी किया है। तो यहां पे एक तरीके से इनके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा है भारत में बने रहना, और एग्जैक्टली वही एप्पल कर भी रहा है। और वैसे भी एक आईफोन जो अभी लाख रुपए का है, अगर वो यूएस में बनने लगेगा उनके मिनिमम वेज रेट्स में जब वो आईफोन असेंबली होने लगेगी तो आप वो आईफोन की कीमत बढ़ के 3 लाख रुपए देखेंगे। तो ये बात एप्पल भी समझता है और 3 लाख का आईफोन यूएस में भी कहीं से भी वायबल नहीं होने वाला। तो ये बात वो भी समझ रहे हैं, इसलिए ट्रंप के ये जो टैंट्रम्स हैं इसको एप्पल भी हल्के में ले रही है और इंडिया स्टोरी से वो आज भी कहीं ना कहीं वैसे ही पहले की तरह, रादर उससे भी अधिक मजबूती से भारत के साथ आज भी टिकी है। पर दोस्तों यूएस कुछ तो परेशान है। अगर आप देखिए उसके डर्टी मूव्स चलते जा रहे हैं। अथॉरिटीज जो यूएस में थे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे मैंगो को रिजेक्ट किया। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट भारत के मैंगोज का अमेरिका है। इन्होंने 15 शिपमेंट्स हमारे फ्रूट के रिजेक्ट किए जो कि एयर से हमने भेजे थे और कह दिया जी इसमें डॉक्यूमेंटेशन में लैप्सेस है। इन्होंने कह दिया एक्सपोर्टर्स को या तो ये मैंगोज यहीं डिस्ट्रॉय कर दो या फिर इसको वापस इंडिया भेज दो। अब एयर से वापस भेजना बड़ा महंगा सौदा है, तो एक्सपोर्टर्स ने कहा चलिए इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, $5 लाख का नुकसान है, सह लेंगे। दोस्तों यहां पे दरअसल पूरी कहानी क्या है, आप जरा सोचिए किसकी गलती के लिए कैसे पनिश किया जा रहा है भारत को, जरा देखिए। 7 शिपमेंट्स थे जो कि इरेडिएटेड, जिनको होता क्या है दोस्तों, बेसिकली फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में क्या होता है, पेस्ट ना रहे इसके लिए इनको अल्ट्रा वायलेट से एक बार हम ट्रीट करवाते हैं, इसी को कहते हैं इरेडिएशन। अब पर्पस होता है दोस्तों इसमें अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है फल में तो वो मर जाएगा और इसके साथ फ्रूट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और कोई पैथोजन दूसरे देश में नहीं जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या ना, भारत में जब भी इस प्रकार से हम फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं तो होता क्या है, एक इरेडिएशन सेंटर होता है, वहां पे फ्रूट्स को हम इरेडिएट करवाते हैं और उसके आधार पे यूएसडीए क्या होता है दोस्तों, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उस इरेडिएशन ऑफिस में बैठता है। बेसिकली यूएस फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति है जो देखता है इरेडिएशन हो गया तो उसके आधार पे वो एक ठप्पा मार के देता है जिसको कहते हैं PPQ फॉर्म 203, वो फॉर्म देता है। अब दोस्तों हमारे मैंगो को इरेडिएशन भी करवाया, यूएसडीए के इस अफसर ने PPQ 203 का ठप्पा भी मार दिया, यानी कि हमारे तरफ से जो होना था वो सब हो गया और ये यूएस ऑफिशियल ने वो फॉर्म भी इशू कर दिया। फिर वो मैंगो एक्सपोर्ट भी करवा दिया, यूएस पहुंचवा भी दिया और उसके बाद जैसे ही वो मैंगो यूएस पहुंचा, यूएस के ऑफिशियल्स ने कहा ये PPQ 203 फॉर्म में कुछ गड़बड़ लग रहा है, उस अफसर ने कुछ सही से फॉर्म बनाया नहीं है, तो ये मैंगो तो मार्केट में नहीं आ सकता। बाकी सब कुछ है, रेडिएशन हो चुका है, कोई पेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यूएस के इस अफसर के गलती का नतीजा $5 लाख का नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स को हुआ है। अब दोस्तों ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, आप किसी भी एक्सपोर्ट को कल को अपने किसी अफसर से जानबूझ के कुछ भी करवा सकते हैं और फिर बुलवा सकते हैं अपने एंड पे कि जी ये तो गलत है, ये तो नहीं आने देंगे मार्केट में। तो ये दोस्तों एक नॉन टैरिफ बैरियर जो अमेरिका ने लगाया है, ये क्लियरली दिख रहा है ये आर्म ट्विस्ट करने के लिए लगाया गया है। यहां पे $5 लाख वाले अमाउंट पे मत जाइए, आधा मिलियन कुछ भी नहीं होता भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था में जहां इतना ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन ये मंशा दिखा रहा है, तो आपको ये बात समझनी होगी। तो यहां पे यूएस ऑफिशियल जानबूझ के एक आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये और एक न्यूज देखिए, इससे और भी चीजें क्लियर हो रही हैं। भारत को कैसे सिंगल आउट किया जा रहा है। मंडे को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा कि देखिए हम वीजा रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे उन सभी ओनर्स पे, एग्जीक्यूटिव पे, सीनियर ऑफिशियल्स पे जो इन ट्रैवल एजेंसीज के हैं जिन्होंने भारत से यूएस में इलीगल इमिग्रेशन को फैसिलिटेट करवाया। बेसिकली क्या है, उन्होंने कहा कि भारत में कुछ कंपनीज हैं जो इलीगल इमिग्रेशन यूएस वगैरह करवाते हैं और इन लोगों पे भी एक्शन लेने के लिए हम इस प्रकार का वीजा रेस्ट्रिक्शन उन कंपनीज के ओनर, एग्जीक्यूटिव और सीनियर ऑफिशियल्स पर भी लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही ट्रिवियल मैटर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है नॉर्मल है, कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप शब्द देख रहे हैं केवल और केवल इसमें बेस्ड एंड ऑपरेटिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया को सिंगल आउट करते हुए कर रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम, श्रीलंका, यहां से भी तो ये चीज होता रहता है, आप उनको छू भी नहीं रहे, यहां केवल भारत को सिंगल आउट कर रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है दोस्तों, कुछ नाराजगी अचानक से आई है दोस्तों, यहां धुआं दिख रहा है जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते। कंक्लूजन क्या है,
कंक्लूजन यही है दोस्तों, इंडिया ने ना कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए हैं जो यूएस पसंद नहीं कर रहा। शायद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ है, जो 6 पॉइंट रिबटल दिया और ट्रंप को दुनिया के सामने